जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर बार बार उन्होंने जोर दिया है और ये इनिशिएटिव जो है उनमें से एक है। उनके आशीर्वाद और दूरदृष्टि के माध्यम से जरूर धर्मा फाउंडेशन में आज 2100 चेरी के पौधों का ये सामूहिक वृक्षारोपण जो है एक हरित स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता कराने की उनकी दृष्टिकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सो विद दीज वर्ड्स मैं अब मंच पे आमंत्रण करना चाहूँगी सेक्रेटरी जगन धर्मा फाउंडेशन के श्री कॉन्ट्रैक्ट सर्वन जी को स्वागत भाषण के लिए श्री कॉन्ट्रैक्ट सर्वन श्री बीके सक्सेना जी, श्री भूपेश चौधरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मीटिंग लद्दाख, रिस्पेक्टेड एडवोकेट Tashi Galsan जी, फॉर्मर CEC चेयरमैन LASD ले, श्री Tashi Galsan Khachu, स्टेट प्रेसिडेंट BJP लद्दाख, respected monks, honorable dignitaries, guests, officials, students who traveled by hostel, young villagers and their brothers and sisters. On behalf of the Rama Foundation, I extend my warmest welcome and heartfelt gratitude to all of you for gracing the special occasion of the Mass Plantation of 2100 Cherish Plants here at Jagan Rama Foundation. Today's event is not merely a plantation program, it is a collective commitment towards environmental protection, ecological balance, and greener future for India. This noble initiative has been undertaken under the kind blessing, guidance, and wishes of His Holiness the Bishop Dilshad Rinpoche, who has always inspired us to work for environmental preservation and sustainability. His Holiness has continuously emphasized the importance of protecting nature and maintaining harmony between human beings and the environment. Over the past years, under his inspiration and blessings, Jagan Dharma Foundation has actively participated in
various greenery and environmental activities, including plantation drives, water conservation initiatives, awareness programs, and promotion of eco-friendly practices across Ladakh. In June 2022, His Holiness Degung Skyapgun Chesang Rinpoche was conferred with the title Green Ambassador of UT Ladakh by the then LAHDC and then UT administration for his inspiring goodwill for improving the quality of life through organic farming practices and healthy environment in Ladakh, and also initiated for planting more than 1.5 lakh plants in the Changthang region of Ladakh. Today's plantation of 2,100 cherry plant is another historic step in this direction. We are deeply honored by the gracious presence of Honorable Lieutenant Governor Shri V.K. Saxena ji, whose commitment towards environmental sustainability and development is widely admired. Your esteemed presence today has greatly encouraged us and strengthened our resolve to continue such meaningful initiatives for the welfare of society and nature. I would also like to express sincere gratitude to Mr. Bhupesh, Administrative Secretary, Ladakh, for encouragement this development initiative. Distinguished guests, Degung Dharma Foundation has been working continuously for the welfare of society through various humanitarian, educational, cultural, spiritual, and environmental initiatives. One of the most important projects of the foundation is the Tribal Girls Hostel, which provides accommodation, education support, and a safe nurturing environment for tribal girls from remote and underprivileged areas of Ladakh. The foundation firmly believes that empowering young girls through education is essential for building a stronger and progressive society. Apart from education support, the foundation is also actively engaged in cultural preservation, youth development programs, spiritual education, environment awareness, and social welfare activities for the community. On this occasion, I would like to place on record our sincere appreciation and gratitude towards former CEC Shri Kashi Galsanji for his continued cooperation and support to Degung Dharma Foundation over the past years. His support in sanctioning the multi-purpose hall and extending assistance to various developmental activities of the foundation has greatly contributed to our growth and service to the society. We remain thankful to you, sir, for your valuable contribution and encouragement. Today, as we plant 2,100 cherry saplings, we are not only planting trees, but also planting hope, compassion, and responsibility for future generations. We hope that this initiative will inspire more people, especially the youth, to actively participate in protecting our fragile Himalayan environment. This year, Degung Dharma Foundation, in collaboration with Sankalp Taru Foundation, has successfully distributed 50,000 fruit plants and saplings of various varieties among progressive farmers across Ladakh, with the vision of promoting environmental sustainability, greenery, and long-term livelihood support for local farming communities. We sincerely hope to continue and expand this noble initiative in the coming years for the greater benefit of farmers and the ecological future of Ladakh. Today's mass plantation of 2,100 cherry plants at Phyang is also an important part of this joint environmental initiative undertaken by Sankalp Taru Foundation and Degung Dharma Foundation under the kind blessing and inspiration of His Holiness Degung Skyapgun Chesang Rinpoche. The foundation also like to humbly request the kind intervention of Honorable Lieutenant Governor for carrying out and speeding up the ongoing construction of the multi-purpose hall. You can see at Degung Dharma Foundation Phyang. It has been observed that during the past few months, the progress of the work has remained considerably slow, which may affect the timely completion and utilization of this important facility for educational, cultural, spiritual, and community welfare activities. The foundation therefore earnestly requests your good office to kindly direct the concerned executive agency department for expediting the work so that the multi-purpose hall may be completed at the earliest
for the benefit of students, local community and welfare programs being undertaken by the foundation. We also express our sincere gratitude and appreciation to Shri Tashi Kachu for his constant support and encouragement towards the initiatives of Devang Dharma Foundation, his valuable support in the successful installation of deep irrigation facility at Dharma Foundation, Phiang, greatly contributed towards the strengthening of our environment and plantation initiatives. We highly appreciate his continued cooperation and commitment in supporting the welfare, education and green initiatives undertaken by our foundation. Once again, I warmly welcome all the dignitaries and guests to Devang Dharma Foundation, Phiang, and thank you all for joining on this meaningful and auspicious occasion. Thank you, Junaid. राज्यपाल महोदय जी को ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो मास प्लांटेशन है 2121 का, ये हमारे ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पर ड्रिप मोर क्रॉप के इस इनिशिएटिव से चल रहा है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के है थ्रू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बीइंग ओवरलुक्ड बाय द सेक्रेटरी श्री भूपेश चौधरी. सो दिस इज अ हैंड होल्डिंग जहाँ पे हम लोग आपको ग्रीनरी की तरफ, जो कि आप जिसके लिए इनिशिएटिव करते हैं, हमेशा ये देखभाल करते हैं. सो दिस इज येट अनदर फेदर टू द इनिशिएटिव दैट यू आर ऑलवेज डिजायर्ड ऑफ. विद दीज वर्ड्स यहाँ पे देवं धर्मा फाउंडेशन की ओर से एक मेमोरेंडम माननीय राज्यपाल महोदय जी को प्रेजेंट करना चाहते हैं. LHDC ले के फॉर्मर चेयरमैन और साथ ही साथ देवं धर्मा फाउंडेशन के एडवाइजर एडवोकेट टाशी ग्यालसन जी को मंच पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी. श्री टाशी ग्यालसन जी. आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख श्री विनय कुमार सक्सेना जी, मंच पे उपस्थित सेक्रेटरी टू HLG मैडम शशंका जी, सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर भूपेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट टाशी ग्यालसन खाचू जी, और यहाँ पे उपस्थित चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर टिल्ले साहब, और यहाँ पे हमारे देवं धर्मा फाउंडेशन के सेक्रेटरी कोंचोक साहब, और यहाँ पे उपस्थित प्यांग मॉनेस्ट्री के वेनरेबल मंक्स और अन्य जो ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद है, और प्यांग गांव के निवासी और देवं धर्मा फाउंडेशन ट्रैवल गर्ल्स हॉस्टल के रेजिडेंट्स, सबको जुड़े. सबसे पहले तो मैं माननीय एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. सर, आपने अपने कीमती समय निकाल के जो है आज आप यहाँ पे हम सबके बीच में आए, और ये जो 2100 चेरी यहाँ पे जो प्लांट किया है, उसका जो है इनॉग्रेशन आपके शुभ हाथों से हुआ है. और मैं समझता हूँ सर, जो एक सपना हमारे हिज होलीनेस स्केपगन छजांग रिम्पोचे जी ने देखा है, उस सपने को जो है आगे ले जाने के लिए आपके शुभ हाथों से जो है आज ये शुरुआत हुआ है. तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी दिन हुआ है, और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर. मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एलजी साहब को भी अभी इसके बाद आप सबको अपने विजन के बारे में बताना है और अपने मिशन के बारे में भी बताना है. मैं सर, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो है इससे पहले विस्तार से जो है हिज होलीनेस स्केपगन छजांग रिम्पोचे जी के इनिशिएटिव्स के बारे में बताया. मुझे भी सर 2020 से 2025 तक मेरे जो 5 साल के काउंसिल 6 LHDC के टर्म में
हिज होलीनेस ग्याल्पुन सेचांग रिम्पोचे जी के साथ काम करने का मुझे भी जो है एक मौका मिला और उनके मिशन को, उनके विजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए जो है हमें भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला और काफ़ी चीज़ों के ऊपर हमने काम किया था सर। हिज होलीनेस ग्याल्पुन सेचांग रिम्पोचे जी के एक तो ये बहुत ही क्लोज हार्टेड एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना है ड्रिगुंग धर्मा फाउंडेशन, एक जो है सर मिशन गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक एक इनिशिएटिव वो भी चलता है सर, जिसमें जो है लद्दाख में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर स्ट्रेस देने का काम किया है और साथ ही साथ जो है प्लांटेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं ताकि जो है जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हर जगह आ रहा है तो उसमें जो है लद्दाख से जो है थोड़ा बहुत कंपनसेट कर पाए। लद्दाख के लोग जो है उसमें एक थोड़ा सा योगदान दे पाए जो ग्लोबली जो है एक जो है क्लाइमेट चेंजिंग जो चेंज अभी हो रहा है तो इसलिए जो है चुशुल जैसे जगह में भी सर जो फॉरवर्ड पे है चंगथंग में हमने जो है 2021 में जो है लगभग 1.5 लाख प्लांटेशन प्लांट किया सर चुशुल में और उसके बाद जो है न्यूमा में भी किया है, फिर अभी हाल ही में जो है तकमाचेक में भी जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्लांटेशन प्लांट किया सर। ये 2024 की बात है सर। तो उसके बाद जो है अभी ये जो ड्रिगुंग धर्मा फाउंडेशन है इसका जो है थोड़ा सा मिशन और इसके जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हट के हैं। यहाँ पे एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में भी जो है चर्चा होते हैं और उनके ऊपर काम होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी बात तो एक एजुकेशन को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और दूसरा जो है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम किस तरह से काम कर सकते हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहा है, जो इश्यूज हो रहा है उसके ऊपर जो है एक सेंसिटिविटी लोगों में कैसे जागरूक करें और कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं और इसलिए जो है लद्दाख को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर जो है काम करते हैं सर। ऐसे इनिशिएटिव के साथ जो है ये फाउंडेशन भी जो है चलता है, जिसमें सर जो है ये राइट साइड में जो बिल्डिंग बड़ा बना है ये जो है सर गर्ल्स हॉस्टल है सर। तकरीबन 80 के आसपास जो है यहाँ पे हमारे बच्चियाँ जो है रहती है यहाँ पे, जो यहाँ पे हायर एजुकेशंस के लिए आए हैं और अक्रॉस द लद्दाख सर। ये सिर्फ लेह का ही नहीं है, कारगिल से भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आके रहते हैं सर और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, कुछ कॉलेजेस में जो है बहुत जो कुछ कोर्सेज जो है जो जैसे नुब्रा और शाम और जो जितने भी जो फीडर कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो उपलब्ध नहीं होते हैं वो यहाँ पे मजबूरन आना पड़ते हैं। तो इसलिए जो है उनके रहने का भी जो है यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, जिसको भी जो है पूरा ये फाउंडेशन अपने जिम्मेवारी उठा के चलाते हैं सर अंडर दी ब्लेसिंग ऑफ हिज होलीनेस ग्याल्पुन सेचांग रिम्पोचे जी। तो साथ ही साथ जो है रिम्पोचे ने हमेशा से वोकली जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया है लद्दाख में, तो ये इसी का एक पार्ट है सर। यहाँ पे 2100 चेरी प्लांट किया है और क्योंकि आप हम तो कहते हैं सर थोड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि पहले लद्दाख में कभी सोचता नहीं था कि हम चेरी प्लांट करेंगे, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज है सर, क्लाइमेट का पैटर्न चेंज हो गया तो आज लद्दाख में भी जो है चेरी उगता है, तो वाई नॉट उसका जो है सही इस्तेमाल में लाएं और यहाँ के लोगों के रोज़गार को कम करने के लिए और लोगों के रोजी रोटी को ऊपर ले जाने के लिए जो है थोड़ा सा किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसलिए जो है इसका ये प्लांटेशन यहाँ पे हुआ है सर और इसको जब ये बड़ा होंगे, जब ये फ्रूट देंगे तो इसके जो है जो कमाई से जो है और भी जो है यहाँ पे जो हॉस्टल्स और एजुकेशन को प्रमोट करना, इन चीज़ों को जो है सपोर्ट करने में जो है थोड़ा बहुत योगदान मिलेगा सर। मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आपका जो है आशीर्वाद बना रहा है ड्रिगुंग धर्मा फाउंडेशन को भी और हिज होलीनेस के जो मिशन को जो है अभी और आगे ले जाना है सर। तो उसमें जो है आपका सहयोग चाहिए और जहाँ तक जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात है इसमें आपको आश्वासन देते हैं हम जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है अलाइन होके एक कोलैबोरेशन में
और भी जो है लद्दाख के हर जगह को जो है फोकस करके वहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करके काम कर सकते हैं। उसमें जो है द्रिगुंग धर्मा फाउंडेशन का सहयोग आपको पूरा मिलेगा, इस तरह का मैं आश्वासन आपको देता हूँ सर फाउंडेशन के बिहाफ पे। और एक सर अभी हमारे देमजोग में सर, देमजोग नहीं सर सॉरी, शायोग में, अब शायोग सर आप उस पर बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जल्दी वहाँ पे टूरिज़्म के लिए एकदम खुल जाए और वहाँ पे टूरिस्ट जाने लगे और वहाँ के लोगों के भी की इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथन हो, लाइवलीहुड में जो है परिवर्तन मिले। तो वहाँ पे भी जो है हिज होलीनेस कैप्टन सेजांग रिम्पोचे जी ने जो है एक वहाँ पे भी एक बॉटनिकल पार्क वहाँ पे गार्डन वहाँ पे बना है सर, उसके ऊपर भी जो है अभी काम चल रहा है। काफ़ी सारे सहयोग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मिला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है सर। शायद वो प्रोजेक्ट भी जो है आप तक अभी पहुँचा जाएंगे, शायद हमारे टाशी काजू जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। तो मैं बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगा सर, और मैं एक बार फिर से जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने कीमती समय निकाल के आज हम सब के बीच में आए, और स्टेट प्रेसिडेंट साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो है एलजी साहब को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और आपने उनको इन्विटेशन यहाँ पे दिया, और आज जो है एलजी साहब खुद यहाँ पे चल के आके और हमारे बीच में बैठे हैं। तो एक बार फिर से जो है सभी के बिहाफ पे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। To tell you about the inmates of hostel inmates of the tribal hostel, girls hostel, sir, as he has rightly mentioned, this hostel is actually housing girls of not just of Leh but Kargil also, and those who are from very far-flung areas. It becomes really difficult for a girl when she has to go for studies and all, when she has actually have to look out for residential problems and also. Thank you so much to Dharma Foundation for that. Thank you so much once again to Sri Tashi Kausal. और जब यहाँ पे जब मैं धन्यवाद कहूँ तो मैं डेगू धर्मा फाउंडेशन के बिहाफ पे यहाँ पे सेक्रेटरी और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट से अनुरोध करना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे अतिथिगण यहाँ पे पधारे हैं, तो एक थैंक यू जेस्चर के तौर पर मोमेंटोस हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। आप यहाँ पे पधारे, हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट हम आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल गुड ये प्रेजेंट किया जा रहा है आपको सर। थैंक यू सो मच to Shri Bhupesh Chaudhary, the Administrative Secretary of Agriculture, UT Ladakh. Bhupesh sir, आपको भी Shashanka ma'am, the Administrative Secretary, to introduce sir. Thank you so much ma'am for your presence. To Shri Bhupesh Chaudhary, the Secretary of the Agriculture Department of the UT Ladakh. Thank you so much sir for your presence here. Degung Dharma Foundation. To Sri Tashi Khaju, State President BJP. Thank you so much sir for your support. To Srimati Tashi Dolma, District Agriculture Officer Leh, and to Sri Ramzan, Sub-Divisional Officer Agriculture Department Leh. Sri Ramzan. And to Sri Nurbu Nambadar Pyamle, the Chief Guest of the occasion, Honorable Lieutenant Governor sir, to kindly share your views sir. Secretaries of UT Administration, Shri Tashi Galsan, ex-CEC Leh, Shri Tahi Galsan Kachu, BJP President, representatives of Pyang Gonpa, Damagaru Gonpa, Sangchugol Gonpa, members of the Dribung Dharma Foundation, Pyang, villagers, representative of Pyang, ladies and gentlemen, मीडिया के साथियों और यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट्स, ट्राइबल गर्ल्स, आज का दिन हम सब के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम लद्दाख के भविष्य को सुरक्षित करने और इसके फ्रेजाइल इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज यहाँ हम फ्यांग स्थित द्रिगुंग धर्म फाउंडेशन में 2100 चेरी के पौधों को लगाकर मास प्लांटेशन करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये ग्रीन इनिशिएटिव पूज्य द्रिगुंग साइबोंग चेनसोंग रिम्पोचे जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से प्रारंभ की गई। ये पहल पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की हमारी सामूहिक
प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से द्रुबुंग धर्मा फाउंडेशन की सराहना करना चाहता हूं, जो समाज कल्याण और पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मुझे द्रुबुंग फाउंडेशन के बारे में बताया गया और जिस तरीके का यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है और किया जा रहा है, और इसके पहले भी अलग अलग जगहों पे जो प्लांटेशन हुआ है वो वास्तव में सराहनीय है। कारगिल हो, लेह हो, लद्दाख हो, ये सारी की सारी जो जगह है एक फ्रेजाइल एटमॉस्फेयर है यहाँ का, और प्लांटेशन करना यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक सामाजिक ऐसा कार्य है जिससे कि आप न सिर्फ पर्यावरण को ही मजबूत करेंगे बल्कि आने वाले समय में हमारे भविष्य को भी मजबूत करेंगे। आज यहाँ इस अवसर पर हम सभी बड़ी संख्या में प्लांटेशन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस अवसर पर मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारा ये कदम आने वाले समय में न सिर्फ हमारे लेह शहर की खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि यहाँ के इकोलॉजिकल चैलेंजेस को भी निपटने में मदद करेगा। लद्दाख देश के सबसे संवेदनशील इकोसिस्टम में से एक है। यहाँ के पर्वत, ग्लेशियर्स, नदियाँ, बायोडाइवर्सिटी केवल प्राकृतिक धरोहर ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार भी है। लद्दाख जैसे इलाके में पेड़ और जंगल सिर्फ इकोलॉजिकल एसेट्स नहीं है, यहाँ की सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा जरिया है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस से ही दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सबसे स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। लद्दाख में इतनी बड़ी संख्या में चेरी प्लांटेशन एक नई पहल है और मैं हमेशा एक नए प्रयोग करने में विश्वास रखता हूं, और पहले भी मैंने दिल्ली में कई जगहों पर बहुत सारे पेड़ों को लगाया जिसमें चेरी ब्लॉसम, अमरूद, अंगूर, ग्रीन एप्पल, वाटर एप्पल जैसे प्लांट्स लगाए गए और बहुत सफल भी हुए। तो मैं चाहूँगा कि ये प्रयोग जो है यहाँ पर भी किए जाएं और मैं धीरे धीरे कर भी रहा हूँ। और मुझे याद है कि मैंने कल रात में ही हमारे सेक्रेटरी को बोला था और उन्होंने यहाँ पर कुछ पेड़ नए भेजे हैं जिनको भी लगाने का कार्यक्रम किया जाएगा। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले जब माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे तो उस वक्त बड़ी लंबी उनसे जो चर्चा हुई और उसके बाद एक मीटिंग भी उन्होंने जब ली तो उस वक्त उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया। पहला था कि यहाँ पर प्लांटेशन किया जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, और दूसरा वाटर कंजर्वेशन पे कितना काम किया जा सकता है उसको भी सोचने की ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें बताया था कि लगभग 40-50 दिन के मेरे कार्यकाल में लगभग 8000 पेड़ों को अलग अलग जगहों पर लद्दाख में लगाया गया है और ये प्लांटेशन ड्राइव जारी है। और आज 2100 पेड़ों का लगाना अपने में एक फिर बहुत बड़ी ही अद्भुत घटना है। एक चीज़ उन्होंने और जो कही थी जिसके लिए एक स्कीम बन रही है और मैं बहुत जल्दी लॉन्च भी करने वाला हूँ कि यहाँ एक स्कीम बनाई जाए जिसमें हर परिवार को कम से कम 10 पेड़ लगाने के लिए कहा जाए और उसे सिर्फ लगाना ही नहीं बल्कि कैसे वो बढ़े, कैसे उनकी रख रखाव हो उसका पूरा ध्यान रखा जाए। ये स्कीम को लॉन्च करने की भी ज़रूरत है। ये स्कीम भी मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूँगा और मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप कम से कम एक परिवार 10 पेड़ों को लगाएं और उसके फ़ोटो लगाते वक्त लें और उसके बाद उसको वेबसाइट भी बनेगी उस पर अपलोड करिए और 1 साल के बाद वो उसकी कितनी ग्रोथ हुई है उसको भी अपलोड करिए, जिससे हमें मालूम पड़े कि वास्तव में वो पेड़ कितना सर्वाइव किए। और जिनके पेड़ सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे उनको हमारी कोशिश होगी कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जाए, ऐसी रिकग्निशन दी जाए जिससे कि लोग और प्रोत्साहित हो इस कार्य से जुड़ने के लिए। तो ये स्कीम बहुत जल्दी बनेगी और मैं आपके सामने लेकर भी आऊँगा। दूसरा, जो एक पानी की समस्या यहाँ पर बहुत है, ये एक ऐसा इत्तेफाक है कि यहाँ ग्लेशियर्स हैं जहाँ पानी ही पानी है
और वो सारा पानी बहकर नदी में चला जाता है और वो कहीं और चला जाता है, हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसी मीटिंग में यहाँ के एक बहुत बड़े एनजीओ जो चला रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम 1% से कम ग्लेशियर के पानी को यूज़ कर पाते हैं, और अगर हम 10% पानी को यूज़ कर पाएँ तो शायद पूरे लद्दाख में पानी की समस्या ही ना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर मैंने आते ही काम शुरू किया और एक हिम सरोवर नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें अभी 50 गाँवों के अंदर तालाब बनाए जा रहे हैं और जिनका साइज भी फिक्स है। और इसका नाम हिम सरोवर इसलिए रखा गया है कि जो पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघलती है उनको इन तालाबों में लाकर भरना है, जिससे कि ये पानी हमारे जो आसपास के जो गांव हैं उनमें खेती के लिए यूज़ किया जा सके, जानवरों के लिए भी यूज़ किया जा सके, चारागाहों के लिए यूज़ किया जा सके, और जब विंटर्स में वो जम जाता है पानी तो उसको स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ किया जा सके, उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होगा। तो वो स्कीम भी चल रही है और एक साल में मैंने टारगेट दिया कि कम से कम हम 100 गाँव में ऐसे तालाब को बनाएंगे। और ये 50 गाँव जो हमने सेलेक्ट किए हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर गांव के जो हमारे मुखिया हैं, जो नंबरदार हैं, उनसे कांटेक्ट किया गया, उनसे पूछा गया है और उसके बाद उसको स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो ये स्कीम जो है ऐसी स्कीम है जहां हम गांव वालों से मिलकर उनके साथ बैठकर इस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में ये स्कीम लद्दाख के फेस को बदलने का बहुत बड़ा काम करेगी। आज का ये चेरी प्लांटेशन इनिशिएटिव इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और हमारा सामूहिक लक्ष्य आने वाले वर्षों में लद्दाख का जो हरित क्षेत्र को, अभी आपको शायद मालूम होगा, जो ग्रीन कवर है लद्दाख का वो 0.4% यानी कि 0.5% भी नहीं है, उसे 2 साल में 5% करने का मैंने लक्ष्य रखा है। और जिस तरीके से प्लांटेशन आज शुरू हुआ है और पूरे लद्दाख में जिस तरीके से प्लांटेशन हो रहा है, मुझे यकीन है कि आने वाले 2 सालों में हम 5% ग्रीन कवर को करने में सफल होंगे। और हम 5% ग्रीन कवर को ला देते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कभी कभी टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली जो है दूर होना शुरू हो जाएंगी। आज जो प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उनको ख़ास तौर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े प्रोएक्टिव तरीके से इस काम को अंजाम दिया और ऐसे आने वाले समय में वो करते रहेंगे, जिससे कि लद्दाख को जो हमें एक ग्रीन कवर देना है उसमें हम सफल होंगे। इस तकनीक में ड्रिप लाइनों के माध्यम से पानी के पौधों को जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है और बहुत कम कीमत में पेड़ को हेल्दी रखा जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रभावी है, देश के कोने कोने में इसे यूज़ किया जाता है। लद्दाख में इसको अभी कुछ समय से ही शुरू किया गया है। लद्दाख की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जाना है, उसमें मैंने देखा कि लद्दाख के लोग हमेशा प्रकृति से जुड़े रहते हैं, प्रकृति को बचाने का कार्य करते हैं। तो ये कदम भी मैंने देखा है कि उसी से जुड़ा हुआ कदम है। और यहाँ की जो मोनेस्ट्रीज़ हैं, यहाँ के जो हमारे रिम्पोचेज़ हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मैंने सभी को देखा कि वो सबसे ज़्यादा जो है अगर फोकस करते हैं तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर करते हैं। ये हमारे धर्मगुरुओं की बहुत बड़ी खासियत है और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं देश के कोने कोने में धर्मगुरुओं से मिला हूँ, लेकिन धर्मगुरुओं की अपनी एक पहचान होती है, उनकी अपनी कार्यशैली होती है, लेकिन शायद पर्यावरण के ऊपर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। लेकिन लद्दाख के अंदर मैंने इस बात को बहुत नज़दीकी से देखा है। इसके लिए मैं यहाँ के सभी धर्मगुरुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को जो है बचाए रखा और सदियों से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लद्दाख के पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
सरकार आपके साथ खड़ी होकर सहयोग कर सकती है और करती रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर भी सरकार ने आपको हेल्प करी ड्रिप इरिगेशन के लिए, इस तरीके से सरकार आपके हर काम में आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन किसी भी स्कीम की सफलता तभी संभव है जब लोकल लोगों का उसमें सहयोग हो, लीडर्स का सहयोग हो। तो मैंने यहाँ देखा कि हमारे जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े गर्मजोशी के साथ उन्होंने इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। और जब आपके स्टेट में इस तरीके के लीडर्स हों जो पर्यावरण के लिए इतने ध्यान रखने वाले हों, तो मैं समझता हूँ कि भाई आने वाला समय जो है गोल्डन पीरियड ही मैं कह सकता हूँ। और बहुत कम समय में हम देखेंगे कि लद्दाख ग्रीन इनिशिएटिव में नंबर 1 होगा और उसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन में भी नंबर 1 होगा। मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि मेरे लेवल पर जो कोई भी सहयोग की ज़रूरत होगी मैं हमेशा हाजिर हूँ। जहाँ तक प्लांटेशन का सवाल है, ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बड़े नज़दीक है और मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा है और लाखों प्लांट्स लगाए हैं। मैं दिल्ली की अगर बात करूँ तो लगभग मैंने 3.5 साल के अंदर 20 लाख प्लांट्स को लगाया है। और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि वो लगभग सभी के सभी, शायद 2 या 5% मोर्टेलिटी रही होगी, वो सभी के सभी हेल्दी हैं और आज 40-50 फीट के हो भी चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में मैं लद्दाख में भी यही देखूंगा कि यहाँ पर जो प्लांटेशन किया जा रहा है 1-2 साल के अंदर ये जगह इतनी सुंदर होगी कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी। यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बनाने के बहुत स्कोप्स हैं और मैं ये भी कहता आ रहा हूँ कि लद्दाख में हमने जो हमारे जो टूरिस्ट की जो स्कोप है उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया है और आने वाले समय में उसको किस तरीके से हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ की जो लोकल कहना चाहिए जो थीम है उसको मेंटेन करते हुए करें। यहाँ की लोकल यहाँ की जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करते हुए करें, उसका भी हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश होगी कि हम आने वाले समय में इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम करें और लद्दाख को एक ग्रीन डेस्टिनेशन बनाने की तरफ आगे बढ़ाएं। आज जिन प्लांट्स को लगाया गया है, क्योंकि एक अद्भुत हैं, चेरी के प्लांट्स लगाए गए हैं, मैं एक बार फिर सभी को बधाई देता हूं और ख़ास तौर से हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, उनको बधाई देता हूं कि आने वाले समय में इस तरीके के प्रोग्राम्स करते रहें और मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे हर प्रोग्राम में मैं आकर आपका सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे अनुरोध करना चाहूँगी वेनरेबल ताशी ग्याल्सन जी, ही इज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दिबुंग धर्मा फाउंडेशन, कि वो धन्यवाद भाषण यहाँ पे आके पढ़े। वेनरेबल ताशी ग्याल्सन जी। July to all, respected Lieutenant Governor of UT Ladakh, Shri V.K. Saxena ji, Shri Ashish, Administrative Secretary Shri Bhupesh ji, former Chief Executive Councillor Shri Tashi Gyaltsen ji, State President BJP Shri Tashi Gyaltsen Khaju ji, Chief Agriculture Officer Shri Thinles Dawa ji, Nambardar Phyang, member of the community and the warm-hearted villagers of Phyang and the students of Tribal Girls Hostel. On behalf of Degung Dhamma Foundation, I extend our deepest gratitude for the gracious gracing this occasion, the inauguration of our 2108 Marsh Cherry Plantation Drive today. Your presence inspires us and strengthens our resolve to nurture our land for generations to come. Shri V.K. Saxena ji, as Lieutenant Governor, your visionary leadership has been a pillar for Ladakh's progress. Thank you for inaugurating this initiative and championing sustainable agriculture. Shri Bhupesh ji, Administrative Secretary Agriculture, thank you for your support, sir. We look forward to your continued guidance for our future initiative. Shri Tashi Gyaltsen ji, former Chief Executive Councillor, your experience and encouragement have motivated us from the start. Thank you for standing with us, sir. Shri Tashi Gyaltsen Khaju ji, State President BJP, your active involvement reflects true community spirit. We appreciate your participation wholeheartedly here.
Shri Trinles Lawaji, Chief Agriculture Officer, your on-ground effort have brought these plantations to life. Thank you for your tireless direction, sir. We also extend heartfelt thanks to Tadu Sankalp Foundation for the generous support to distribute this cherry plants and these plantations life, and Tadu Sankalp Foundations and generous support, and the Shri Ajit Nima ji of Anish Foundation Delhi for this kind donations for this plantation. To our respected Nambadar community members and the villagers of Fyang, your local wisdom and enthusiasm made this event possible. The administration of UT Ladakh has always been a steadfast supporter to Digung Dhamma Foundation, from resource to encouragement. Together we are sowing seeds of greenery, peace and self-reliance. Let us carry this momentum forward. Lastly, thank you once again, each and everyone over here. Thank you so much. Thank you, and Julie to all.